Welcome to Sharad V. More English School online lecture. Good morning, student. So already I have started lesson number 14, substances in common use, and under that we have studied about the common substance sodium chloride and its uses. Next part we have seen the sodium chloride and its uses. Common salt is nothing but the is sodium chloride. Now this next salt is the sodium bicarbonate, and what are its uses that we will see now. The sodium bicarbonate is also called as the baking soda and its chemical formula is NaHCO3. Its chemical formula is NaHCO3. Your mother brings your mother brings cake on your birthday or make it at home. She also makes crepes, bhajia. Have you ever asked your mother what makes the cake porous on the bhaji crepes? Bhaji crisps. Mother add the baking soda in the butter. Baking soda is the white non-crystalline powder. Its chemical name is the sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate, and its molecular formula is sodium bicarbonate NaSCO3. Its formula is NaSCO3. Property and uses. NaSCO3 react with the moist litmus paper and red litmus turns blue, which means that it is basic in nature. The sodium bicarbonate react with moist litmus paper and red litmus turns blue. जब ये सोडियम बाइकार्बोनेट को रिएक्ट करते हैं लिटमस पेपर से तो रेड लिटमस ये कन्वर्ट हो जाता है ब्लू एंड व्हेन in any substance when the red litmus turns to blue it means that substance is basic in nature. It is used to make the bread cake dhokla. Being basic in nature it is used to reduce acidity in the stomach. अब ये एसिडिक सॉरी ये बेसिक है इसलिए इसका इस्तेमाल स्टमक में एसिडिटी रिड्यूस करने के लिए होता है. सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज टू मेक द एक्टिव सब्सटेंस CO2 इन द फायर एक्सटिंग्विशर. फायर एक्सटिंग्विशर में भी सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल होता है. बेकिंग सोडा इज यूज टू क्लीन एन ओवन. ओवन को भी क्लीन करने के लिए बेकिंग सोडे का इस्तेमाल होता है. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ द सॉल्ट ब्लीचिंग पाउडर. ओके, कौन सा पाउडर है? ब्लीचिंग पाउडर. एंड इट्स नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOlCl2. CaOCl2. टैप वाटर हैज़ अ टिपिकल स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इन द रेनी सीजन. रेनी सीजन में जो टैप से आने वाला पानी है, नल से निकलने वाला जो पानी है उसके अंदर से पर्टिकुलर टाइप की है, टिपिकल टाइप की ऑर्डर आती है, स्मेल आती है. हैव यू एक्सपीरियंस इट? यस, वी ऑल हैव एक्सपीरियंस इट. वाटर इन अ स्विमिंग पूल आल्सो हैज़ द सेम ऑर्डर. और वही ऑर्डर हम लोगों को स्विमिंग पूल से भी आती है. इट इज़ द ऑर्डर ऑफ द क्लोरीन गैस. अब ये जो ऑर्डर है स्विमिंग पूल से आने वाली और जो उस टैप वाटर से रेनी सीजन में जो ऑर्डर आती है वो किस चीज़ की ऑर्डर होती है? क्लोरीन गैस की होती है. किसकी? क्लोरीन गैस की. It is the odor of the chlorine gas and used to destroy the microbes in the water. ये क्लोरीन गैस का ऑर्डर होता है जो माइक्रोब को डिस्ट्रॉय करने के लिए वाटर की में प्रेजेंट माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज होता है. क्लोरीन गैस इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड देयरफॉर इट हैज़ द स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टिंग एज वेल एज ब्लीचिंग एक्शंस. ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टिंग होता है और ब्लीचिंग एक्शंस होता है. क्लोरीन इज अ इनकॉन्वीनियंट टू हैंडल बिकॉज ऑफ इट्स गैसियस स्टेट. क्लोरीन जो है वो इनकॉन्वीनियंट होता है यूज करने में बिकॉज ऑफ इट्स गैसियस स्टेट. बिकॉज ये कौन सी स्टेट में रहता है? गैसियस स्टेट में. इन स्टेट द सॉलिड ब्लीचिंग पाउडर विच हैज़ द सेम इफेक्ट इज मोर कॉन्वीनियंट टू यूज. बट जो सॉलिड स्टेट में अवेलेबल है ब्लीचिंग पाउडर वो ज़्यादा यूजफुल होता है. ब्लीचिंग पाउडर अंडरगोज slow decomposition due to the carbon dioxide in air and chlorine gas is released.
So what happens when the chlorine gas or chlorine when the bleaching powder is released? So what happens? The chlorine gas released from the powder of the bleaching powder gets its property because of this release of the chlorine gas. Bleaching powder gets its property because of the release of the chlorine gas. Calcium oxychloride plus carbon dioxide gives the calcium carbonate and plus chlorine gas. Bleaching powder is obtained by reaction of the chlorine gas with the slag lime. Now, yes, how do the calcium oxychloride, that is bleaching powder, is made? So this is made by, yes, chemical reaction between the calcium hydroxide and chlorine gas. Property and its uses. Bleaching powder is yellowish white colored solid substance. It is yellowish white colored solid substance. Its chemical name is calcium oxychloride and it has a strong odor of the chlorine gas. It is used for disinfections of the drinking water at the water water works and the water in the swimming pool. It is used for the disinfection of the drinking water. ये इसका इस्तेमाल जो है ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में होता है एंड वाटर वर्क एंड वाटर इन द स्विमिंग पूल और इसका इस्तेमाल वाटर के काम में और वाटर के स्विमिंग पूल के वाटर को क्लीन करने के लिए होता है. इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग ऑफ द क्लोथ और इसका ब्लीचिंग एक्शन होने की वजह से क्या है इसका क्लॉथ की ब्लीचिंग के लिए उसको क्लीन करने के लिए वॉश करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है. इट इज़ यूज फॉर डिसइंफेक्शन बाय द रोड साइड एंड गार्बेज साइड. इसका यूज जो गार्बेज की साइड होती है जहाँ पे गार्बेज को क्या करते हैं डंप करते हैं हम लोग जहाँ पे कचरे को फेंकते हैं और रोड साइड को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है. Dilute sulfuric acid and dilute hydrochloric acid react rapidly with the bleaching powder to release the chlorine gas completely. अब जो dilute sulfuric acid और इसका calcium oxychloride and bleaching powder when react, there is a formation of the calcium sulfate, chlorine gas and water molecules. Calcium oxychloride reacts slowly with the carbon dioxide to form the calcium carbonate and chlorine. जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है इट रिएक्ट स्लोली विथ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म कैल्शियम बैग में देखो कैल्शियम कार्बोनेट एंड क्लोरीन. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ द सॉल्ट नेक्स्ट सॉल्ट इज द वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 Na2CO3 plus Na2CO3 and there is a water of crystallization also और उसमें water of crystallization भी है.
sodium carbonate Na2CO3 dot H2O. The hard water from well or bore well becomes soft on adding the washing soda, and we come to know this from the yes leather form on it. The hardness of water is due to the presence of the chloride and sulfate of the calcium and magnesium in it. जो वो वाटर वेल का जो हार्ड हो जाता है किसकी वजह से होता है? क्लोराइड एंड सल्फेट, कैल्शियम का क्लोराइड और कैल्शियम का सल्फेट, इस सॉल्ट की वजह से। कौन सी सॉल्ट की वजह से? कैल्शियम क्लोराइड, ओके, एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्ट की वजह से ये हार्ड हो जाता है। ये सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू सॉफ्टन सच वाटर एंड मेक इट सुटेबल फॉर यूज। और ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये इसके अंदर ऐड करते हैं उसको सॉफ्ट बनाने के लिए। द रिएक्शन विद द सोडियम कार्बोनेट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ द इनसॉल्युबल carbonate salt of the magnesium and calcium. So when it react with the magnesium chloride or magnesium sulfate or calcium chloride or magnesium sulfate, it forms the insoluble salt. तो ये क्या बन जाता है? insoluble salt. तो हम क्या बोल सकते हैं? precipitate बन जाता है यहाँ पे, और जो है इसलिए वो क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है वाटर, क्योंकि वाटर के अंदर का जो ये कार्बोनेट रहता है वो इनसॉल्युबल फॉर्म में ये फॉर्म होकर वो सेपरेट हो जाता है या उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। तो वाटर और वो जो डिज़ोल्व रहते हैं सॉल्ट वो सेपरेट हो जाते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट इट बिकम्स सॉफ्ट। Sodium carbonate is a water soluble salt of the sodium. Sodium carbonate is the water soluble salt of sodium. Crystalline sodium carbonate, on keeping, loses its water of crystallization readily and a white powder is obtained. This powder is called as the washing soda. अब देखो, जब सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सोडियम कार्बोनेट ये क्या है? वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है सोडियम का, और ये जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, एंड लूजेज इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रेडली एंड वाइट पाउडर इज ऑब्टेन। जब उसको हीट करते हैं तो क्या हो जाता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या करता है? वो लूज कर देता है और वाइट पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। दिस पाउडर इज कॉल्ड एज द वॉशिंग सोडा। इसी को हम क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। ओ मिस्त्री, सर ऐसी वाली बुक देखें। मैं वैसा वाला नहीं देखा। Properties and uses. Washing soda is a whitish and odorless powder at a room temperature. रूम टेम्परेचर पे क्या है? ये वाइट कलर का, और वाइट कलर का जो है ये क्रिस्टलाइन पाउडर है। एंड लिटमस हैज़ अ ब्लू कलर इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। जब इसके एक्वस सॉल्यूशन में हम लोग अगर ब्लू लिटमस डिप करते तो क्या रहता है? ये ब्लू रहता है, बट रेड डिप करते तो क्या हो जाता है? ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स इट इज़ बेसिक इन नेचर। इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक, दैट इज इट्स एब्जॉर्ब द मॉइस्चर इफ इट लेफ्ट एक्सपोज टू एयर। ये हाइग्रोस्कोपिक है, मीन्स क्या करता है? ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। जब इसको हम लोग क्या करते हैं? इस तरह से खुला रख देते हैं, ओपन रख देते हैं या एयर में एक्सपोज करके रखते, देन इट इज़ यूज मेनली फॉर द वॉशिंग क्लोथ्स। इसका इस्तेमाल मेनली कपड़ों को यस वॉश करने के लिए होता है। सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड इन द ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री एंड आल्सो इन रिफाइनिंग ऑफ द पेट्रोल। सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल ग्लास और पेपर इंडस्ट्रीज में होता है, और क्या पेट्रोल को रिफाइन करने के लिए भी होता है। ओके स्टूडेंट, नाउ यस सी द नेक्स्ट पेज। सम क्रिस्टलाइन सॉल्ट। अभी हम लोगों ने कितने सॉल्ट के बारे में स्टडी किया? यस, अबाउट द 4 सॉल्ट वी हैव स्टडीड। फर्स्ट वन इज द सोडियम क्लोराइड, सेकंड वन इज द वॉशिंग सोडा, दैट इज Na2CO3, and baking soda NaSCO3, and the bleaching powder CaOCl2। तो 4 टाइप के सॉल्ट के बारे में हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया। नाउ ये सम क्रिस्टलाइन सॉल्ट। अब कुछ क्रिस्टलाइन सॉल्ट के एग्जांपल्स देखेंगे। नाउ सी द एलम। Alum is also called as the fitkiri in Hindi, and it is a potash alum. Its chemical formula is K2SO4,
Al2SO4 and 24H2O. So in this crystal structure of alum, there are the 24 molecule of the water of crystallization. Now borax, okay, borax Na2B4O7.H2O, borax powder, okay. Epsom salt. It is also called as the magnesium sulfate MgSO4.H7H2O. So here there are the 7 water molecule of crystallization. And next one is the barium chloride BaCl2.2H2O. So there are two water of molecule of crystallization. Sodium sulfate, it is also called as the global salt sodium sulfate Na2SO4.10H2O. Okay, collect more information on the property and uses of the substance listed above. अब इनकी प्रॉपर्टी को आपको क्या करना है, नेट पे फाइंड आउट करना है कि इनका क्या क्या यूजेस है. You have learned that alum is used in the process of the water purification. रेनी सीजन में जो टर्बिड वाटर आता है उसको प्यूरिफाई करने के लिए एलम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं. बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ द कोगुलेशन द सॉलिड इम्प्योरिटीज इन द वाटर कम टुगेदर. इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है कोगुलेशन की, जिसकी वजह से जो सॉलिड इम्प्योरिटीज होती है वो एक साथ कलेक्ट हो जाती है, जो वाटर के अंदर डिजॉल्व रहती है. बिकम हैवी एंड सेटल टू द बॉटम. अब ये कोगुलेशन प्रॉपर्टी होने की वजह से सबके सब जो सॉलिड मटेरियल जो सस्पेंडेड होते हैं वाटर के अंदर वो इकट्ठे हो जाते हैं और उनका वेट हेवियर हो जाता है. बिकॉज ऑफ दैट दे सेटल टू द बॉटम. और उसके बाद में उस जार को हम टिल्ट करके ऊपर का जो पानी रहता है क्लीन वाटर वो दूसरे जार में कन्वर्ट कर देते हैं. एज ए रिजल्ट वाटर अब वो बिकम क्लियर. इसकी वजह से जो ऊपर का वाटर होता है वो क्लियर हो जाता है. ब्लू विट्रॉल इज यूज. ब्लू विट्रॉल मीन्स द कॉपर सल्फेट. Blue vitriol means what? Copper sulfate CuSO4. CuSO4 copper sulfate. Blue vitriol is used in the blood test for diagnostics. For diagnosing the anemia. Anemia की diagnosis में blue vitriol का इस्तेमाल होता है. In Bordiox mixture which is used as the fungicide on the fruits like grapes, muskmelon, slack lime, and it is used with the blue vitriol. अब जो बॉर्डियक्स का जो मिक्सचर है, बॉर्डियक्स का मिक्सचर, इसमें जो ग्रेप्स और मक्स मेलन और स्लैक लाइम के साथ जो होते हैं वो फंगीसाइड के फॉर्म में ब्लू विट्रॉल के साथ में इस्तेमाल होता है. मतलब यहाँ पे ब्लू विट्रॉल का क्या है, यूज है. इसका भी इस्तेमाल क्या होता है, ये फंगीसाइड के फॉर्म में, लेकिन इसके साथ में हम लोगों को ये फंगीसाइड का मिक्सचर्स लेना पड़ता है, उसमें ऐड करना पड़ता है ब्लू विट्रॉल. नाउ नेक्स्ट सोप के बारे में. सोप मतलब व्हाट, साबुन. तो व्हेन ऑयल और एनिमल फैट इज बॉइल्ड विथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर फॉर्म. जब हम ऑयल या तो क्या है ये एनिमल फैट को बॉईल करते हैं एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो salt of the higher fatty acids are formed and these salt are called as the soap. तो इसी salt को हम क्या बोलते हैं, soap. When soap is mixed with the hard water, calcium and magnesium salt of the fatty acids are formed. तो जब हम इनको क्या करते हैं हॉट वाटर में डालते हैं तो इनका ये कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड फॉर्म होता है. दिस बीइंग वाटर इनसॉल्युबल, और ये जो सॉल्ट फॉर्म होते हैं ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं. दे फॉर्म द प्रिसिपिटेट एंड दैट इज वाई लेटर इज नॉट फॉर्म. और ये क्या बना देते हैं, प्रिसिपिटेट, एंड वाई लेटर इज नॉट फॉर्म. तो बाद का जो है वो फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए लेदर मतलब फोम का फॉर्मेशन नहीं होता है. कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग द डिफरेंस बिटवीन द bathing soap and washing soap. High grade fats and oil are used as raw material. Low grade fats and oil are used in washing soap. So yes, here the scents are used of the good quality. Here the soaps are used of the cheaper quality. Radioactive substance. अब radioactive substance क्या है, some substance naturally emits the some type of radiation. Such elements are called as the radioactive element. ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, रेडियोएक्टिव एलिमेंट.
तो ये एलिमेंट क्या करते हैं, yes, some radiation, some rays are released by them, and because of that they disintegrate, they slowly is decrease in their size because of the loss of the weights in the form of the radiations. The element with a high atomic number such as uranium, thorium, radium have the property of spontaneously emitting invisible, highly penetrating and high energy radiation. तो ये ऐसे एलिमेंट्स है जो क्या करते हैं, यस, इनविजिबल, जो आंखों से दिखाई ना दे, हाईली पेनिट्रेटिंग, कि जो दूसरे मटेरियल्स के अंदर पास आउट हो सके, एक साइड से दूसरी साइड जा सके, और हाई एनर्जी उसके अंदर प्रेजेंट होती है। ऐसे रेडिएशंस वो स्पॉन्टेनियसली एमिट करते, ऐसे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हाइयर होता है, दे आर कॉल्ड एज द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द रेडियो एक्टिविटी। ए सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। द न्यूक्लियस ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज अनस्टेबल। अब जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल होता है। रेडिएशंस अकर फ्रॉम एन अनस्टेबल न्यूक्लियस। जो रेडिएशंस होता है, रेडिएशंस अकर फ्रॉम एन अनस्टेबल न्यूक्लियस, तो जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है वहाँ से रेडिएशन एमिट होते हैं, निकलते हैं। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस आर रिलेवेंट टू आवर डे टू डे लाइफ। Radioactive substances are relevant to our day-to-day life. However, better before going further, let us learn something more about this substance. This type of radiations are given out by radioactive substance. These are alpha, beta and gamma rays. अब देखो जो अल्फ़ा, बीटा और गामा रेज है, दे आर गिवन और एमिटेड फ्रॉम द रेडियोएक्टिव एलिमेंट। रेडियोएक्टिव एलिमेंट से ये क्या होते हैं, एमिट होते हैं, निकलते हैं। नेचर ऑफ द रेडियोएक्टिव रेडिएशंस, नेचर क्या होता है, नेचर किसका, रेडियोएक्टिव एलिमेंट का, दैट वी हैव टू सी नाउ। In 1889, Rutherford discovered that radiations emitted by radium were of the two type। अब जो रुदरफोर्ड ने 1889 में जो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने उसमें ये क्या है, फाइंड आउट किया दैट ये जो रेडिएशन एमिट करता है ये रेडियम, वो दो टाइप के होते हैं, एंड दे आर कॉल्ड अल्फ़ा एंड बीटा रेडिएशन। और उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा रेडिएशन एंड बीटा रेडिएशन। विलार्ड discovered that the third type of the, namely gamma radiation, ओके, अल्फ़ा और बीटा जो रेडिएशन था उन्होंने रुदरफोर्ड ने 1889 में डिस्कवर किया, और जो विलार्ड साइंटिस्ट है उन्होंने थर्ड टाइप के रेडिएशन, गामा रेडिएशन की डिस्कवरी की। When these rays are allowed to pass through the two oppositively charged plates, they get separated. This method was introduced by the Rutherford in 1902। अब जो अगर हम लोग इस रेडिएशन को टू अपोजिटिवली प्लेट्स से पास करते हैं तो क्या हो जाते हैं, ये दो रेज अपोजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ बेंड होते हैं। दिस मेथड इज गिवन बाय द रुदरफोर्ड इन 1902। रुदरफोर्ड एंड विलियम Rutherford and Willard studied the radiation emitted by the radioactive substance. For this purpose, rays were allowed to pass through. The rays were allowed to pass through an electrical field, and a photographic plate was held in their path। तो क्या किया गया इसके लिए, इलेक्ट्रिकल फील्ड में इन रेज को पास किया गया और फोटोग्राफिक प्लेट उनके रास्ते में रखा गया, पुट किया गया। इट वॉज फाउंड दैट रेडिएशन वॉज डिवाइडेड इंटू द थ्री टाइप। वन टाइप ऑफ रेडिएशन डेविएटेड स्लाइटली टूवर्ड्स द निगेटिवली चार्ज प्लेट। अब जब रेडिएशन एमिट हुआ तो क्या पता चला कि कुछ रेडिएशंस जो है वो निगेटिव, ये जो प्लेट है उसकी तरफ डेविएट हो गए, बेंड हो गए। वाइल सेकेंड टाइप ऑफ रेडिएशन डेविएटेड, और उसके बाद में दूसरे टाइप का रेडिएशन पॉजिटिवली चार्ज में क्या हो गया, ये बेंड हुआ सब्सटेंशियली टूवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट।
However, the third type of radiation did not deviate at all in electric field. और एक तीसरे टाइप का जो रेडिएशन था वो बिल्कुल इस तरफ उस तरफ क्या है डेविएट नहीं हुआ, बिल्कुल बेंड नहीं हुआ. The rays which deviated slightly toward the negatively charged particles are alpha rays. जो नेगेटिवली चार्ज जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ बेंड हुआ वो क्या है अल्फा रे. तो अल्फा के ऊपर क्या होगा पॉजिटिव यस चार्ज होगा, देन ओनली पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा अट्रैक्शन. तो अल्फा रेज आर द पॉजिटिवली चार्ज. The rays which deviated slightly toward the negative charge plate are called alpha rays. Those which deviate the substantially towards the positively charged plates are called the beta rays. और जो बीटा रेज थे वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट किए मीन्स बीटा हैव द नेगेटिव चार्ज. एंड दोज हु डू नॉट डेविएट एट ऑल आर कॉल्ड गैमा रेज. और जो बिल्कुल ही डेविएट नहीं हुए उनको हम क्या बोलते हैं गैमा रेज. नाउ सी द एक्सपेरिमेंट गिवन ऑन फिगर गिवन इन फिगर 14.1 अल्फा बीटा एंड गैमा रेज. तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है. यहाँ पे ये क्या है लेड का ब्लॉक है, उस ब्लॉक के अंदर क्या रखा रेडियो एक्टिव एलिमेंट. And here a small aperture is there and here there is a slit and here is positively charged plate and below of that there is negatively charged plate. So when alpha rays are the positively charged, alpha rays are the positively charged. So what happens, the alpha rays is bent toward the negatively charged plate and beta rays are the negatively charged particles or rays, that's why they are attracted toward the positively charged plate, that's why they bend toward the positively charged plate. And gamma rays okay passes without any type of the deviation, it means it is chargeless. इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कोई चार्ज नहीं है, वो चार्जलेस है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज. अल्फा बीटा और गामा रेज के कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ फर्स्ट सी द प्रॉपर्टी अल्फा रेज बीटा रेज एंड गामा रेज. नेचर ओके नेचर current of the alpha particles He हीलियम. अल्फा रेज क्या है पॉजिटिवली चार्ज है और ये क्या है कब बनता है हीलियम जब अपने दो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है रिलीज कर देता दे देता है. बीटा रेज करंट ऑफ द बीटा इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स. करंट ऑफ द बीटा इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स एंड गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो क्या नेचर में हमने देखा कि अल्फा रेज आर पॉजिटिवली चार्ज एंड इट इज़ द helium plus plus and the beta rays are the current of the beta means here electron negatively charged है and electromagnetic radiations क्या है gamma rays. Now mass 4.02 unit and here 0.0548 and no mass. Now charge +2 charge and here -1 charge and electrically neutral. Velocity 1/5 to 120 times the velocity of light and here beta rays 1/5 to 910 times the velocity of the light, same as velocity of light. तो यहाँ पे जो gamma rays है उसकी velocity ये किसके बराबर है velocity of light के बराबर है. Deviation in the electromagnetic field, deviation bending. Now the alpha rays are positively charged, they bend toward the negatively charged plate, attract toward the positively charged plate because they are negatively charged and not deviated. Penetrating power can penetrate in the aluminum sheet of the thickness less than 0.02 mm. ये इसका पेनिट्रेशन पावर कितना है कि एल्युमिनियम की एक शीट जिसकी क्या है थिकनेस 0.02 mm हो उससे कम थिकनेस की शीट को ये क्या कर सकता है पेनिट्रेट कर सकता है मीन्स वन साइड से दूसरी साइड तक जा सकता है. कैन पेनिट्रेट एन एल्युमिनियम शीट ऑफ द थिकनेस 2 mm विच इज़ 100 टाइम्स दैट ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल. और इसका पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है, ये 100 टाइम्स है किसके कंपेयर में अल्फा पार्टिकल के कंपेयर में. ये जो है 102 mm का जो थिकनेस का है जो एल्युमिनियम की शीट उसको ईजिली पेनिट्रेट कर सकता है. कैन पेनिट्रेट द 15 सेंटीमीटर थिक लेड. और इसका जो पेनिट्रेशन पावर है इट इज़ वेरी हाई, इट कैन पेनिट्रेट द 15 सेंटीमीटर थिक लेड स्क्रीन विच इज़ 10,000 टाइम द पेनिट्रेशन ऑफ द अल्फा पार्टिकल. इसका जो पेनिट्रेशन पावर है वो 10,000 टाइम ज़्यादा है किसके अल्फा पार्टिकल के कंपेयर में. नाउ आयोनाइजेशन पावर. ionization power of the alpha particle are very high
and beta are low, and yes, gamma are very low. Power to produce the fluorescence. तो now the power to produce the fluorescence, जो fluorescence प्रॉपर्टी है उसको ये जनरेट करने की जो पावर है अल्फा रेज की सबसे हाई है एंड गामा की उससे कम है एंड बीटा की जो पावर है वो इंटरमीडिएट है बिटवीन द ये अल्फा और गामा रेज. Uses of the radioactive isotope. It is the misconception that radioactive elements are used only for making an atom bomb. ओके ऐसा इस तरह का मिसकॉन्सेप्शन है कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट का इस्तेमाल सिर्फ एटम बम बनाने के लिए होता है. रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज इन द वेरियस फील्ड सच एज द साइंटिफिक रिसर्च, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मेडिसिन एक्सेट्रा. इसका इस्तेमाल ये साइंटिफिक रिसर्च, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, मेडिसिन सभी फील्ड में इसका यूज़ हो सकता है होता है. रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर यूज इन द टू वे. रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इस्तेमाल दो तरीके से होता है. बाय यूजिंग देयर रेडिएशंस अलोन और बाय यूजिंग द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इटसेल्फ. इसका इस्तेमाल दो तरीके से होता है, या तो उसके रेडिएशन का यूज़ करना और जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसका ही डायरेक्ट यूज़ करना. नाउ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी. Generally, the element with the atomic number from 82 to 92 are found to be radiate spontaneously in nature. These are called natural radioactive element. Artificial radioactive element, the couple Frederick Juliet. The couple Frederick Juliet Curie and Irene Juliet Curie was first invented induced radioactivity. The radioactive element produced in the nuclear fission process brought about in the laboratory by bombardment of the particles are called artificial radioactive element. They were awarded the Nobel Prize in 1935 for this invention. तो उनको 1935 में इस इन्वेंशन के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला. तो इस तरीके से क्या है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी. तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में दो जो पर्सन है कौन कौन से है ये फ्रेडरिक जूलियट क्यूरी एंड आयरीन जूलियट क्यूरी. ये दोनों ने ये इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी का इन्वेंशन किया एंड बिकॉज ऑफ दैट दे वेयर गिवन द नोबेल प्राइज इन 1935. Radioactive isotope and uses in the various field are as follows. Radioactive element and they are used in the different radiography. Radiography. The internal cracks and voids in the cast iron articles and iron shoulders can be detected with the help of the gamma rays. For this purpose, isotopes like cobalt 60, iridium 192 are used in the radiography camera. This technique is used for detecting the flaws in the metal work. Okay, student, now yes, unmute yourself and if you have any doubt, ask to me. Okay, now I am ending the meeting.